Praise the Lord, church. A very good morning to you. Hallelujah. I want to read to you from 1 Peter chapter 1 verse 22 and further on. It says, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. हालेलुया. परमेश्वर का वचन हमेशा और हमेशा के लिए अटल है, दृढ़ है. हालेलुया. क्या आप विश्वास करते हैं? आइए हम जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब भाईचारे के साथ एक दूसरे से प्रेम के साथ इकट्ठे हों. हालेलुया. क्योंकि इट सेज फ्लैश इज लाइक ग्रास. हर प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन हमेशा युगानुयुग स्थिर रहता है. हालेलुया, हालेलुया. Yes, Lord, your word remains forever. Jesus, your word remains forever. Thank you, Lord. आइए हम उसके वचन को डिक्लेयर करेंगे और पवित्र आत्मा को, जो अभी का परमेश्वर है, अपने बीच में आमंत्रित करेंगे. Come, Holy Spirit, come. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. Yes, Lord, we want to hear your voice. We want to hear your voice today. We want to hear your word. Not the voice of any man, but the voice of God. Yes, Holy Spirit, we want to hear from you. Speak to us. Move us, Lord. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. 'Cause when you speak, when you move, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. Changing everything, you're changing. हाँ, हम उसकी इमेज में ढलते जाते हैं. पवित्र आत्मा हमें बदलता जाता है उसकी उपस्थिति में. Spirit of the living God, Spirit of the living God,
hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. 'Cause when you speak and when you move, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. You're changing everything. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we're leaning into all you are. Everything else can wait. Spirit of the living God, Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we're leaning into all you are. Everything else can wait. Spirit of the living God, the Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. 'Cause when you speak, when you move, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. You're changing everything, Spirit of God. 'Cause when you move all our fears. And when you move us to tears. And when you move all our fears. And when you move us to tears. And when you fall, we fall on our knees. And when you fall, we fall at your feet. And when you fall, we fall on our knees. And when you fall, we fall at your feet. 'Cause when you move, when you speak, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. You're changing everything. हाँ पवित्र आत्मा, तू हमें बदल रहा है, तू हमें भर रहा है अपनी सामर्थ से परमेश्वर।
तेरी उपस्थिति में हमें लेकर आ रहा है परमेश्वर। इस वक्त जो लोग अपने हाथों को उठाकर खड़े हैं परमेश्वर, तेरे सामने अपने पूरे दिल से आए हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, तू जो अभी का परमेश्वर है, oh the God of now, Holy Spirit, you touch your people, Lord. Yes, Lord. Every one of us has come with expectation, Lord. We have come with hope. Yes, Father. Hallelujah. परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तुझ से भरा, मेरी जुबान पर गीतों को डाला तूने। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा प्यार है। मुझे देखे आने देखे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। आने देखे मेरे सुने मुझे जी उठे। पर बहाया, हर एक सांस में तेरा गान को पाया मैंने। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु। यीशु कच्चे की जिंदगी जी रहा था, मुझे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर इस मुर्दे ने जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। आने देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। आने देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, तेरा नाम है। आने देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे। हालेलुया। कैसा तेरा प्यार है यीशु। तूने हमें ये नई जिंदगी दी यीशु। हालेलुया। मेरे हर सवाल का जवाब तू है। Jesus is the answer. Hallelujah. हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू।
न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, जीतते आजादी हर समय हर घड़ी। साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, मेरा यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हालेलुया, हमें तू ही काफी है परमेश्वर। हालेलुया, तू काफी है, तू काफी है मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर सेंडिंग योर सन। थैंक यू हमारे लिए वो कोड़े खाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे लिए तूने हमारी जो सज़ा हमें लेनी थी परमेश्वर, वो तूने ली प्रभु, और हमें आज़ाद किया। हालेलुया, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु तेरे इस बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए दिया, और हमें हर मुसीबत से, हर दुख से आज़ाद किया प्रभु। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है।
करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया। तू केवल हमें चंगाई नहीं करता परमेश्वर, तू हमें जीवन देता है। तेरा वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। Yes Lord, we have you Jesus and we have life. आइए हम डिक्लेयर करें, हम बोले अपने मुंह से हालेलुया कि हाँ यीशु मेरे अंदर है, मेरे अंदर जीवन है। हालेलुया। For the one who has the Son has the life. Yes Lord, thank you Father for your life. Thank you for your Son. Oh yes, we have the Son. We have the life of Jesus in us. से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। Thank you Lord. Thank you Jesus for your presence. Thank you Father for your moving in our midst Lord. Thank you Holy Spirit that we are moving. We are moving with the Spirit. We are walking in faith Lord. Thank you Jesus for your presence. परमेश्वर वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
और तुझसे सुनना चाहते हैं प्रभु। हम अपनी आंखें, अपने कान और अपने हृदयों को तुझे समर्पित करते हैं। वचन को सुनने वाले और उस पे चलने वाले हो सके परमेश्वर, होने दे। ऐसी सामर्थ, ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर कर परमेश्वर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Lord, for this, for your presence, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। Thank you, Lord, that your word that would come, Lord, would accomplish what it has to purpose. और धन्यवाद परमेश्वर तेरा वचन जो आएगा परमेश्वर वो अपने मकसद को पूरा करेगा। Thank you, Lord, that help us to be the doers of your word, Lord. और परमेश्वर हमें मदद करके हम तेरे वचन को परमेश्वर लागू करने वाले लोग बने। Thank you, Abba Father, for sending your Son, our Lord Jesus Christ. धन्यवाद अब्बा पिता कि तूने अपना पुत्र भेजा यीशु मसीह को। Thank you, Lord Jesus, you resurrected and gave the Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद यीशु मसीह की तू पूर्णता ने तू और तूने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका We bring our परमेश्वर है। thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे विचार को यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं। हर एक विचार जो उसके आज्ञा के खिलाफ जाता है उसको हम नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। Thank you that you love us, Lord, in spite of what we are to you. धन्यवाद परमेश्वर की तू हमसे प्रेम करता है जो हम हैं तेरे लिए उसके बाद भी। Thank you, Holy Spirit, you sanctify our ears with your precious blood. धन्यवाद पवित्र आत्मा तू हमारे कानों को शुद्ध कर दे तेरी कीमती लहू के द्वारा। Help us to draw us more and more closer to you. और हमें तेरे और पास Help us to seek your righteousness, and all these things shall be added हमें unto मदद you. करके हम तेरे धार्मिकता की खोज कर पाए और ये सारी बातें Thank you for all the viewers that are listening to your word, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे जितने भी परमेश्वर लोग हैं जो देख रहे हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं। Holy Spirit, you would convict them. पवित्र आत्मा तू उन्हें तू उनसे बात कर। Yes, you bring understanding of your word to them. समझ को ला अपने Help वचन के। Holy Spirit, you help us to be the doers of your word, Lord. हमें मदद करके हम तेरे वचन को लागू करने वाले बने। We thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We surrender this time unto the hands, Lord. ये समय तेरे हाथों में समर्पित करते Holy हैं। Spirit, you take control. तू नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Genesis 1:4 says, और उत्पत्ति का पहला अध्याय और चौथी आयत कहती and है God saw light. और परमेश्वर ने जो है वो प्रकाश को देखा God saw light और परमेश्वर ने उजियाले को देखा was good, and he separated the light from the darkness. और वो अच्छा था और परमेश्वर ने जो है उजियाले को जो है वो अंधकार से अलग कर दिया। God saw light that was good. परमेश्वर ने प्रकाश को देखा जो अच्छा था। That's why we are here, because we also need that light. और इसलिए हम यहाँ पर है क्योंकि हमें भी वो प्रकाश की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Where 2 Corinthians 5:17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. और दूसरी कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17वीं आयत कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। As we compare our new creation with the creation of the world, और जैसे हम जो है हमारी नई सृष्टि संसार की सृष्टि से तुलना करते हैं उसकी तो we see many of God's characteristics. और हम देखते हैं परमेश्वर के काफी सारे चरित्र। This throws light what God has done in our new creation. और ये उन चीज पर प्रकाश डालता है जिन पर परमेश्वर ने किया हमारी नई सृष्टि के अंदर। Hallelujah. First we see separation. पहले हम देखते हैं कि हमें अलग किया गया है। God is a God of distinction. और परमेश्वर है जो हर चीजों को अलग अलग करके रखता है। God is a God of distinction and separation. और परमेश्वर है जो हर चीज को अलग अलग करके रखता है। After creating the light, he separated it from the darkness.
और प्रकाश को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे अंधकार से अलग कर दिया and then made night and day. और फिर दिन और रात बनाया Then again God divided the heaven, और फिर से परमेश्वर ने स्वर्ग को अलग कर दिया the heaven, the earth and the sea. और स्वर्ग पृथ्वी और जो है समुंदर। Yeah. First he did light and darkness. पहले उसने प्रकाश और अंधकार बनाया Then from darkness he made night and day. और अंधकार से फिर उसने दिन और रात बनाए Then God divided the heaven, the earth and the sea. और फिर परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी और जो समुंदर है उसको अलग कर दिया। God separated the things of the heaven from the things of the earth. और परमेश्वर ने स्वर्ग की चीजों को संसार की चीजों से अलग कर दी। Similarly, when you accept Christ, और वैसे ही जब आप परमेश्वर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, similarly, the moment you accept Christ, और जिस क्षण आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, you were separated from the world. तब आपको जो है संसार से अलग कर दिया आया था। 2 Corinthians 6:14 says, दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14वीं आयत 2 Corinthians 6:14 says, और दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14वीं आयत it says, do not be yoked together with unbelievers. और यहाँ पर कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, For what do righteousness and wickedness have in common? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? Or what fellowship can light have with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? Hallelujah, hallelujah. Do not be yoked with unbelievers. और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। Obey the word. The word says, do not be yoked together with unbelievers. और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। For what do righteousness and wickedness have in common? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? Or what fellowship can light have with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? Hallelujah. Jesus said, you are in the world, यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार में हो, but not of the पर world. तुम संसार के नहीं हो। John 17, और यूहन्ना का 17 अध्याय 14. और इसकी 14वीं आयत। Jesus said, I have given them your word. और यीशु मसीह कहता है मैंने उनको तुम्हारा वचन दिया है। I have given them your word. मैंने उनको तुम्हारा वचन दिया What है। is this? Your word. और ये क्या है? ये तुम्हारा वचन है। I have given them your word and the world has hated them. और मैंने उनको तुम्हारा वचन दिया है और संसार ने उनसे घृणा की है। For they are not of the world any more than I am of the world. क्योंकि वो अभी और 17वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़ना चाहूंगा मैं अब जगत में न रहूंगा। 14वीं आयत, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। Hallelujah. When we accept Christ, God has given us the word and then we are not of this world. और जब हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तब हम अभी इस संसार के नहीं रहे। And Jesus said in John 17:15, my prayer is that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत में और 15वीं आयत में मैं यही विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। You protect them from the evil one. The evil one, the Satan, the devil. उन्हें दुष्ट से बचाए रख। Hallelujah. The day we accept Christ, the Holy Spirit has put a seal on us, and the Lord Jesus sees, Abba Father sees Jesus in us. और जिस दिन हम जो है मसीह में जो है
जिस दिन हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर एक छाप को डालता है, वो पवित्र आत्मा That's का। why Jesus said that I am not of this world. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत का नहीं हूँ। You are in the world but not of the आप world. जगत में हो पर जगत के नहीं हो। Verse 16 says, 16वीं आयत कहती है, Jesus said, they are not of the world even as I am not of it. जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। Who we the new creation are not of this और world. हम जो नई सृष्टि है वो संसार के नहीं। Say, I am a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और कहो कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, सारी बातें नहीं हो गई है। You become a heavenly person. और आप एक स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हो। He that comes from heaven speaks the things of heaven. और वो जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्गीय बातें को बात करता है। He that comes from heaven speaks the things of the और heaven. वो जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्गीय चीजें के बारे में बात करता है। You think as the you think heaven's thoughts और आप स्वर्ग के विचारों को सोचो and you speak the things of the heaven. और स्वर्ग की बातों को को बोलो। Likewise the earthly man thinks of the and speaks the earthly things. वैसे जो संसार का व्यक्ति होगा वो संसार की चीजें सोचता होगा और उसी के बारे में बात करता होगा। Hallelujah. हालेलुया। John 3 verse 31 says, यूहन्ना का 3 अध्याय और 31वां वचन कहता है, the one who comes from above is above all. जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। The one who is from the earth belongs to the earth जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है and speaks as one from the earth. और पृथ्वी की ही बात करता है। And the one who comes from heaven is above all. जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। So don't think as what you think. You think that you are from heaven. और इसीलिए जो ऐसा ना सोचे जैसे आप सोचते हो, ऐसा सोचे कि आप स्वर्ग से हो। When you come to Christ, you start thinking big, and God puts thoughts in you, and when you abide in His word, you become like what Jesus wants you to be. जब आप मसीह में आते हो तब परमेश्वर आपके अंदर आता है और पवित्र आत्मा आपको और यीशु मसीह की तरह बनाता है। Hallelujah. John 3 verse 31 says, और 3 अध्याय उसका 31वीं आयत कहती है, John 3 verse 31 says, the one who comes from above is above all. जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। The one who is from the earth belongs to the earth जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है and speaks as one from the earth. और वह पृथ्वी की ही बातें करता है। The one who comes from heaven is above all. जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। Jesus lived his life constantly in heaven consciousness. और यीशु मसीह ने अपना जीवन धरती पर जिया स्वर्ग की तरह सोचकर। हाँ, Jesus lived his life constantly in heavenly conscious. और यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया स्वर्ग में पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह सोचकर। Yes, he received instructions and directions from heaven. और उसने स्वर्ग से जो है आज्ञाएं उसको मिली। Yes, why he used to get up early in the morning and pray. क्योंकि वो जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे। And he was relating to his Abba Father. और वो अब्बा पिता से बात करते थे। You to get up in the morning and call out to your और God. आपको भी जल्दी उठ के परमेश्वर को पुकारना है। And he will show you great and unsearchable things that you do not know. और वो भी आपको जो है महान चीजों को दिखाएगा जो आप नहीं जानते। John 5 verse 19 says, Jesus gave them this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. और यूहन्ना का 5वां अध्याय और 19वीं आयत कहती है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से ही कुछ नहीं कर सकता। Yes, the Son can do nothing by himself. और पुत्र आप ही से कुछ नहीं कर सकता। He can do only what he sees his Father doing. और वो वही कर सकता है जो अपने पिता को देखता है करते हुए। Because whatever the Father does, the Son also does. क्योंकि जिन जिन कामों में वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से नहीं। ठीक है।
Hallelujah. John 5:19. पढ़ लिया। Hallelujah. In Christ you know how to divide the things of heaven from the things of the earth. और मसीह में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको स्वर्ग की चीजें और संसार की चीजें अलग रखनी है। The things of the spirit from the things of the flesh. और आत्मा की चीजें और शरीर की चीजें दोनों आपको कैसे अलग रखनी है। 1 Corinthians 2 verse 14 to 15. और पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 14 से लेके 15वीं आयत। हाँ. 1 Corinthians 2:14 says, the man without the spirit does not accept the things that comes from the spirit और 14वीं आयत of कहती God. है, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 14वीं आयत For कहती they है, are foolishness to him and he cannot understand because they are spiritually discerned. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Hallelujah. Hallelujah. Verse 15 says, और 15वीं आयत कहती है, the spiritual man makes judgment about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में से मसीह का मन है। Hallelujah. So we are not judged by anybody. और we are not Judged by anybody. और हमें किसी से भी कोई भी हम पर न्याय नहीं As a करता। spiritual person, we are not judged by anybody. और एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हम पर कोई भी न्याय नहीं करता। That's why Paul says, Paul was so sensitive to distinguish between what comes from the Lord and from his own opinion. और इसलिए पौलुस कहता है, और पौलुस कितना सही तरीके से जो है अलग करता है जो परमेश्वर से आता है और जो उसकी खुद की राय है उससे। Paul says, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. पौलुस कहता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में रहता हूँ और मेरे पास एक जीव है। Say, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में जीता और मेरे पास एक जीव है। Learn to walk in the spirit. और इस आत्मा में चलना सीखे। Paul knew the art of dividing the spirit and the soul. पौलुस को जो है पता था कि कैसे आत्मा और जीव में जो है अंतर लाना है। Yes, in him, because God's word says in Hebrews 4:12. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों का 4 अध्याय और 12वीं आयत, For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। God's word as a sharp two-edged sword. और परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार के समान है। Is given to you primarily to discern what comes from your thought, from your spirit. और ये आपको दिया जाता है ताकि आप जांच पाओ क्या चीज आपके आत्मा से आती है और And what comes from your soul. कौन सी चीज आपके आत्मा से आती है और कौन सी चीज आपकी जीव से आ रही है। So you have to see what comes from your spirit and what comes from your तो soul. इसीलिए आपको देखना है कि क्या आपके आत्मा से आता है और क्या आपके जीव से आ रहा है। And Paul explains very well. That's why he says the word of God is like a double-edged sword. और पौलुस बहुत अच्छे से उदाहरण देता है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर का वचन ये दो धारी तलवार के समान है। And it penetrates even to the dividing soul and spirit. और ये दो धारी तलवार से भी चौका है और Joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है।
Yes, whenever you give the word to somebody, the और- Holy Spirit works into that और person's जब भी आप वचन heart. देते हो किसी और को तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य करता है Yes, and this word touches their spirit and their soul. और ये वचन जो है वो उनके हृदय को स्पर्श करता है Don't mix the spirit and soul. और आत्मा और जीव को आप मिला ना दे. This would war the brightness of your new creation. Sorry, This would war this word? the brightness of your new creation. War means fight, हाँ, WAR. और ये जो है जो ब्राइटनेस और सृष्टि है उसमें वॉर को लेकर आता है. हाँ, लड़ाई, लड़ाई, युद्ध. हाँ, युद्ध, war. Hallelujah. Hallelujah. This would war the brightness of your new creation. और ये आपके सृष्टिकरण नई सृष्टि का जो सृष्टि है और ब्राइटनेस है इसके बीच में एक युद्ध को लेकर आता है. Hallelujah. Hallelujah. That's why I say I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में जीती हूँ और मेरे पास एक जीव Before है. you became born again, somebody gave you the word. और आप नए जन्म पाने से पहले किसी ने आपको वचन दिया And that word penetrates your spirit and your soul. और वो वचन ने जो है आपको जो है आपके वो जीव और आत्मा में गया. Yeah, now we saw separation. We see now what heaven controls. और हम देखते हैं कि स्वर्ग किन चीजों का नियंत्रण लेता है. In God's creation, everything is under heaven's rule. और परमेश्वर के सृष्टि के अंदर सब कुछ जो है स्वर्ग के नियंत्रण में है. Heaven is controlling the earth. स्वर्ग पृथ्वी को चला रहा है. Heaven is controlling the earth. स्वर्ग पृथ्वी स्वर्ग के नियंत्रण में है. That's why God created the sun, moon and stars to control season, days and years. और इसलिए परमेश्वर ने सूर्य चांद और जितने भी तारे उनको बनाया ताकि वो ऋतुएं और दिन पर नियंत्रण रख सके. साल. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया. Genesis 1:14. और उत्पत्ति का पहला अध्याय और 14वीं आयत. Genesis 1:14 says, and God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as sign to mark seasons, days and years. फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्ह हो और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. Hallelujah. That's why God created day and He separated expansion of the sky to separate the day from the night and let them serve as signs to mark seasons, days and years. और इसलिए परमेश्वर ने जो है दिन को रात से अलग किया ताकि वो एक चिन्ह की तरह कार्य करे कि वो ऋतुएं दिन और सालों में अंतर ला पाए. As the heavenly bodies govern day and night and all the seasons, और जैसे स्वर्गीय लोग राज करते हैं दिन और रात और सारे जितने भी ऋतुएं हैं. heaven controls and governs you the new creation. और स्वर्ग आपके ऊपर नियंत्रण रखता है और आपको चलाता है जो नई सृष्टि हो. Hallelujah. Heaven Hallelujah. controls and governs your new और creation. स्वर्ग आप पर नियंत्रण रखता है और आपको चलाता है आप जो नई सृष्टि हो. Yes, 2 Corinthians 5:17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old has gone and the new has come. और दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17वीं आयत कहती है क्योंकि अभी जो भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई है, सारी चीजें नई हो गई है. Say, I am a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. कहो कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी चीजें बीत गई है, सारी चीजें नई हो गई है. Hallelujah. As you govern by heaven, और जैसे स्वर्ग आप को चलाएगा as you are governed by heaven, और जैसे स्वर्ग आपको चलाएगा you govern the earth.
और as a heavenly ambassadors. और वैसे ही आप धरती को चलाओगे एक स्वर्गीय प्रतिनिधि होने के नाते। Philippians 3 verse 20 says और फिलिपियों का 3 अध्याय और 20वीं आयत कहती है that we are citizens of the state. Our citizenship is in heaven and we पर- eagerly wait a savior from there, the Lord Jesus Christ. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Hallelujah, hallelujah. That's why we are citizens of heaven. We इसलिए- stay in earth and we say we are citizens of इसलिए हम heaven. स्वर्ग के नागरिक हैं, हम धरती पर रह रहे हैं पर हम स्वर्ग के नागरिक हैं। Hallelujah. 2 Corinthians 5:20 says, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनंती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। The day we accept Christ, we have become Christ ambassadors. We are on behalf of Christ, we are ambassadors. और जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह की स्वीकार करते हैं को स्वीकार करते हैं, उस दिन से हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन जाते हैं। Yeah, that's why we go around telling, because we are Christ in Christ. We are Christ ambassadors. That's why we go around telling that heaven is near. Repent for the kingdom of God. The kingdom of heaven is near. और इसलिए हम जाकर बार बार जो है जाकर बताते हैं कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। We are Christ ambassadors. That's why we go around telling our close friends, our relatives, that you repent and accept God. और हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम हमारे जितने भी करीब लोग हैं, करीब रिश्तेदार हैं, उनको जाके कहते हैं कि आप पश्चाताप करो और परमेश्वर को स्वीकार करो। Repent, for the kingdom of heaven is near. और पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Hallelujah. Through you God's will is done. और आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। Through you God's will is done on earth as it is in heaven. और आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही। Matthew 6:10 says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. और मत्ती का 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत कहती है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर हो। Hallelujah. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही धरती पर हो। By using your authority of binding and loosing, you bring down heavens on this earth. और आपके अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जोड़ने का और तोड़ने का उस अधिकार से हम जो है स्वर्ग को नीचे लेके आ सकते धरती पर। Hallelujah. That's why Matthew 16:18 says, here says, Jesus said, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome. और इसलिए मत्ती का 16 अध्याय 18वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। Yes, the Peter means rock. पतरस का मतलब पत्थर। Yes, and Jesus said, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not और prevail. यीशु मसीह कहते हैं कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। All your directions comes from heaven. और आपकी सारी मार्गदर्शन स्वर्ग से आती है। In Christ you are called and authorized to represent God's kingdom through your prayers and proclamation. और मसीह में आपको बुलाया जाता है और आपको अधिकार दिया जाता है और आप प्रतिनिधि बनते हो मसीह के, आप प्रार्थना करके और अपने कबूली से। Yes, proclamation. Confess God's word. और परमेश्वर के वचन को कबूल करो। Yes, that's why in Christ you are called and authorized और इसलिए मसीह में आपको बुलाया गया है और अधिकार दिया गया है to represent God's kingdom. ताकि आप
परमेश्वर के राज्य के through प्रतिनिधि your बन praise पाओ and proclamation. और आपके प्रार्थना और कबूली के द्वारा। Yes, the day you proclaim I am from God and God will fight for you. और जिस दिन आप ये कबूल करते हो कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Proclaim if God is for us, who can be against us? और ये कबूल करे कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन खड़े रह सकता And when है। you proclaim, the angels will come down to fight for और you. जब आप कबूल करोगे तो स्वर्गदूत आएंगे और आपके लड़ेंगे। Yes, Colossians 3:3 says, for you died and your life is now hidden with Christ in God. कुलुस्सियों का 3 अध्याय 3 आयत कहती है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Yes, the day you accept Christ, Christ is, your life is hidden in Christ in God, with Christ in God. और जिस दिन आप मसीह को स्वीकार करते हो तो आपका जीवन जो है मसीह के साथ छुप गया है परमेश्वर में। Your life is hidden with Christ in God. और आपका जीवन मसीह के साथ छुप गया है परमेश्वर में। Satan cannot see you. और शैतान आपको नहीं देख सकता। He sees Jesus and he वो walks यीशु away. मसीह को देखकर भाग जाता है। Yes, he sees the blood of Jesus on you and walks away. और वो यीशु मसीह के लहू को देखता है और भाग जाता है। He trembles looking at you. You are God's chosen child. You are a chosen ambassador of Christ. और वो आपको देख के डर जाता है। आप परमेश्वर की चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर की राजदूत हो। No dart of the evil one can touch you. और कोई भी आपको शत्रु का कोई भी हमला आपको छू नहीं सकता। You are born of God. और आप परमेश्वर से हो। And proclaim that you are healed by the blood of Jesus. और कबूल करो कि आपको जो है चंगाई मिले। Yes, यीशु मसीह के proclaim लहू that के you will get द्वारा। up and walk in the name of Jesus. और कबूल करो कि आप जो है उठो Pray, और चलो यीशु मसीह के नाम से। Proclaim that I can hear by the grace of God. और कबूल करो कि आप सुन सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Proclaim that I can see by the blood of Jesus. कबूल करो कि आप देख सकते हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Proclaim that I can walk without limping. और कबूल करो कि आप चल सकते हो बिना दर्द के। Proclaim the name of Jesus has power. और यीशु मसीह के नाम को कबूल करो क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। Use that power, that greater is He that is in you than that is in the world. और उस सामर्थ्य का उपयोग करो क्योंकि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। Hallelujah. Christ is living in you and you in Him. और मसीह आपके अंदर जी रहा है और आप उसके अंदर। He moves wherever you move. और जहाँ पर भी आप चलते हो वो वहाँ पर चलता है। As the heavens declares the glory of God. और जैसे स्वर्ग जो है परमेश्वर की महिमा को दिखलाती है। And His firmament shows His handiwork. His firmament shows His handiwork. फॉर्मेंट क्या है? Psalm 8:1. और भजन संहिता का 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे हम। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm 8:1 says, Psalm David speaks, Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You've set your glory above the heavens. हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। Psalm 19:1 says, और भजन संहिता 19वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती You है, declare the glory of God and shows His handiwork. The heavens declare the glory of God and the आकाश skies. परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। Hallelujah. The heavens declare the glory of the skies proclaim the work of His hands. और स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। Yes, you handiwork. You declare the glory of God and shows His handiwork. और आप परमेश्वर की महिमा को कबूल करो और उसकी हस्तकला को दिखाओ। Amen, amen, amen. You are God's chosen son and daughters. और परमेश्वर के आप चुने हुए
बच्चे हो You live to victory. Victory follows you. और आप विजय के लिए जीते हो, विजय आपके पीछे चलता है। You are overcomers. You are overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और आप जयवंत हुए हो और आप जयवंत होते हो मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। Anyone who sees you और जो कोई आपको देखता है will be wonderstruck to see God's majesty and power in your life. और वो अचंभित हो जाएगा परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में देखने के Don't लिए। lose hope. God is with you. आशा ना छोड़े, परमेश्वर आपके साथ है। This is the very purpose of your existence in the world. और ये आपके ये आपके जो है समय का ये उद्देश्य है। Yes, this is the very purpose of your existence in the world. और आपके यहाँ पर होने का ये उद्देश्य है। Yes, say I am for God's purpose. और कहो कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए यहाँ पर हूँ। I will not be defeated. I will be the head and not the tail. और मैं नहीं हारूंगा, मैं सिर रहूंगा, पूछ नहीं। Yes, you are created for God's pleasure. और आपको परमेश्वर की Pleasure. परमेश्वर की जो है And for the praises of His glory. और परमेश्वर के प्लेजर के लिए आपको बनाया गया है और उसके महिमा के स्तुति के लिए। Hallelujah. Ephesians 1 verse 6 says, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Amen. और एफिसियों का पहला अध्याय और 6वीं आयत पढ़ेंगे 1:1 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। Hallelujah. See, to the praise of His glorious grace, which has given freely on us. Amen. ठीक है। और यहाँ पर है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। Ephesians 1, Paul says in Ephesians 1 verse 12 says, और एफिसियों का पहला अध्याय और 12वीं आयत कहती है, Hallelujah. In order that we who were the first to hope in Christ might be for the praise of His glory. कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। Blood of Jesus. See, I am Christ in me, the hope of glory. और परमेश्वर जो मेरे अंदर है महिमा की आशा है। Yes, the day you accepted Christ in me, the hope of glory. और जिस दिन आपने मसीह को स्वीकार किया उसी दिन से आप परमेश्वर आपके जो अंदर है वो महिमा की आशा बन जाती Yes, है। you will smile. The joy of the Lord is your strength. और परमेश्वर की आनंद आपकी सामर्थ्य है। You will not be defeated because और you are आप God's हारोगे son. नहीं And क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। hallelujah, you were created for His glory. और आपको बुलाया गया उसकी महिमा के You लिए। have to just stand and praise and glory His name. और आपको सिर्फ खड़े होना है और उसके नाम को स्तुति देना है और महिमा Ephesians देनी है। 1 verse 14 says, Paul says, who is a deposit guaranteeing of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So you are created for His praise, for His glory. और आपको बनाया गया है उसकी महिमा के लिए और उसके जो है स्तुति के लिए। Yes, you are who are God's possession. Amen. और आप परमेश्वर के जो है आप परमेश्वर के संतान हो। Beloved, you are a heavenly ambassador on this earth with a heavenly commission and authority. और आप एक स्वर्गीय राजदूत हो इस संसार के ऊपर, आपके पास एक स्वर्गीय उद्देश्य है और अधिकार है। Hallelujah. You are an heavenly ambassador on this earth with a heavenly commission and authority. और आप स्वर्गीय राजदूत हो इस संसार के ऊपर, आपके पास एक स्वर्गीय उद्देश्य है और अधिकार है। Nobody can defeat you. और आपको कोई भी हरा नहीं You are the सकता। child of और God. आप परमेश्वर God के is संतान with हो। you. परमेश्वर आपके साथ He will है make you the head and not the और वो tail. आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। Hallelujah. Hallelujah. You are heaven's channel to release heavenly blessings on earthly beings. और आप स्वर्ग की एक ऐसी चीज हो जिससे
धरती के चीजों पर आशीष पड़ती है। Hallelujah. You are heaven's channel to release heaven's blessings, heavenly blessings on earthly और आप beings. स्वर्ग के बर्तन हो कि आप स्वर्ग के द्वारा स्वर्ग की आशीष पृथ्वी के लोगों को मिलती है आपके द्वारा। That is why in 2 Corinthians 6:15 says, what harmony is there between Christ and Belial? और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और 15वीं आयत कहती है, और मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव। What does a believer have in common with an unbeliever? और एक विश्वासी और एक अविश्वासी का क्या संबंध। Don't marry, if you are a believer, don't marry an unbeliever. और अगर आप एक विश्वासी हो तो आप एक अविश्वासी से ना शादी करें। Yes, God says in His word, obey His statutes. He will make you the head, He will honor you. परमेश्वर उसके वचन में कहता है कि अपने जो है उसके आज्ञाओं का पालन करो तो वो आपको Don't run बड़ा after बनाएगा। that is not of God. और उसके पीछे ना भागे जो परमेश्वर का नहीं है। And those don't run after it, because if you seek God's righteousness, all these things will run after you. और उसके पीछे ना भागे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी चीजें आपके पीछे भागेगी। 2 Corinthians 6:16 said, what agreement is there between the temple of God and idols? और 16वीं आयत कहती है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। Yes, what once upon a time I was worshipping Jesus as idol, Mary as idol. और एक समय में मैं यीशु मसीह और मरियम को मूर्ति के समान उनकी स्तुति और आराधना करती I थी। was blinded, I couldn't see. और मेरे आंखों पे पट्टी लग गई थी, मैं देख I नहीं come सकती from थी। that generation where they worship idols of Mary and Jesus. और मैं उस जो है समय से आती हूँ जहाँ पर वो लोग जो है मरियम और यीशु मसीह को But the day मूर्ति की पूजा I करते हैं। accepted Christ, I believed in Christ, पर God opened my eyes. पर जिस दिन मैंने मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया और मैंने विश्वास किया, परमेश्वर I ने मेरे आंखों को stopped खोल and दिया started following this word of God. और मैं उसने उसे रोक दिया और ये वचन के पीछे होने लग गई। Yes, this book used to remain in my house with dust. और ये किताब मेरे घर में पड़ा होता था धूल के साथ। And we used to only read it just before dinner for 2 minutes. और हमसे One paragraph. और हमसे एक जो है पैराग्राफ पढ़ते थे जो है रात को भोजन से Our पहले। dad used to tell us, you read one paragraph of the Bible. We used to never understand. But then you will get food to eat, dinner to eat. परंतु हमारे पिता कहते थे कि आप एक पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद ही हम आपको भोजन देंगे। Then he also didn't understand. We also didn't understand. We just read it to get dinner. और उनको भी नहीं समझता था, हमें भी नहीं समझता था, हम सिर्फ खाना खाने के लिए पढ़ But लेते थे। when we accepted Christ, the Lord opens our eyes and we see things as God sees. परंतु जब मैंने मसीह को स्वीकार किया तो उन्होंने मेरे आंखों को खोला और मैंने देखा जैसे परमेश्वर दिखा रहा है। Yes, the Lord said not to worship any idols. I stopped doing it. और परमेश्वर ने कहा मूर्ति पूजा बंद करने को मैंने बंद कर दिया। Hallelujah. The Lord told me to follow, I followed. परमेश्वर ने मुझे पीछा करने बोला, मैंने पीछा किया। For we are the temple of the living God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है। Yes, we are the temple of the living हम God. जीवित परमेश्वर के मंदिर है। And 2 Corinthians 6:16 says, as God has said, I live with them and walk among them. I will be their God and they will be my people. हाँ, और दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और 16वीं आयत कहती है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। Yes, the day I accepted Christ, God has been living with me. और जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर मेरे साथ जी रहा है And walked with me. और मेरे साथ चल रहा है And I will be their God. और वो मेरा परमेश्वर And they रहा will be my people. और वो मेरे लोग रहेंगे। And when you do these things, God will follow. Heaven and earth would pass away, but these words will never pass और जब away. आप ये सब करोगे तो
जो है परमेश्वर आपको आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया। In Christ, heaven and earth would pass away, but His words will never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। In Christ, you are authorized to control and govern this earth. Live up to your position. और मसीह में आपको जो है अधिकार दिया है कि आप जो है इस संसार को चला पाओ। Yes, 2 Corinthians 6:17 says, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I had to leave my dad's way of worshiping God, and I started following my God. और मुझे मेरे पिता जो जिस तरीके से आराधना करते थे उसको छोड़ना पड़ा और मैं परमेश्वर के पीछे हो ली। Hallelujah. 2 Corinthians 6:18 says, और 18वीं आयत कहती है, Hallelujah. I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और यह सर्वशक्तिमान और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. The moment you accept Christ, God is being your father to you. और जिस क्षण आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो तो परमेश्वर आपका पिता बन जाता He है। says, you are my sons and और वो daughters. कहता है कि आप मेरे बच्चे हो And I will never leave you and never और मैं forsake आपको कभी you. नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Thank you, Lord, for this wonderful word, Lord. और धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए That we are परमेश्वर not of this world, Lord. कि हम इस संसार के नहीं हैं, As you are not of this world, जैसे Lord. आप इस संसार के नहीं हो। My citizenship is in heaven, Lord. और मेरी नागरिकता स्वर्ग की है। You have made us a righteous light lamp. तूने हमें परमेश्वर एक परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर धर्मी बनाया है A little Christ. और A believer. और तूने परमेश्वर में मसीह की तरह बनाया एक विश्वासी And a temple of God. और एक तेरा मंदिर। You dwell in me and walk in me. और तू मेरे अंदर रहता है और मेरे अंदर You चलता are my है। Abba Father. तू मेरा अब्बा पिता है। I am your child. मैं तेरा बेटा हूँ Because you are with us in Christ. क्योंकि तू मेरे साथ है मसीह में। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा कलीसिया Thank के you, लिए। Lord, for every viewers who are धन्यवाद listening to your word, हर एक Lord. दर्शक के लिए जो देख रहा है तेरे वचन को सुन रहा है। Every spirit would hear your word and give it to others, God. हर एक आत्मा तेरे वचन को सुने और दूसरों को दे। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass स्वर्ग away. और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं You टलेगा। said, Lord, I will make you the head and not the tail. तूने कहा परमेश्वर की मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूछ I नहीं। thank you, Lord, for your word that touches us and makes us walk into धन्यवाद you. परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो हमें स्पर्श करता है और हमें चलने लगाता And you है make us to walk victory after victory. और हमें विजयी से विजयी में चलने If में God मदद is करता for है। us, who can अगर be against परमेश्वर us? हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन रह सकता Lord, we है। thank you for the church, God. और धन्यवाद करते कलीसिया के Thank you लिए for Sashi's mom, Lord. और Thank you, Lord, you would make her get up and walk in the blood of शशि के Jesus. माता के लिए धन्यवाद करते हम धन्यवाद करते कि तूने उठाकर She would चलने not die लगाएगा। but would live to declare the works of God. परमेश्वर वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर पाएगी। Thank you, Lord, for Shashwat, Lord. Make him get up and walk and hear your word, Lord. और धन्यवाद करते हैं शाश्वत के लिए परमेश्वर की वो उठ पाए और चल पाए और तेरे वचन को सुन पाए। Thank you for Ruth, Lord, healing her wounds, pain and complication and infection cannot come against her body because Jesus has borne all the infection and pain and complication on the cross. By his stripes she is healed. और रूथ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारा दर्द सारे कॉम्प्लिकेशन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो सबसे चंगाई पाए। And your word that goes out from her mouth brings healing. और तेरा वचन जो हमारे मुंह से जाता है वो चंगाई लाए उसके Thank you, जीवन Lord, में। for Teresa auntie should walk by the blood of और ट्रीजा Jesus. आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं कि वो चल पाए यीशु मसीह के Thank you for लहू से। Rukmani, give her good health by faith, और God. रुक्मिणी के लिए धन्यवाद करते हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य दे। Thank you, Lord, for every young boys who are looking for the bride, Lord. You
you bless them with a wife after your heart, Lord. और हर एक जवान लड़के परमेश्वर जो दुल्हन को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर मदद कर They कि तू delight in you. उन्हें सही लड़की दे पाए They would delight in you and you give them the desires of their कि वो heart. परमेश्वर तेरे अंदर परमेश्वर अपने मन को लगा पाए और तू उनके हृदय की Thank इच्छा you को for पूरा every करे। daughters, Lord. You would bless them with a husband after your heart. और हर Lord. एक बेटी के लिए धन्यवाद करते हैं उन्हें सही दुल्हा दे Lord, we thank you, Lord, for Lord that whatever we have is yours, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और जो कुछ है वो तेरा है Lord, we pray for every business to flourish in the blood of Jesus. और हर एक व्यवसाय आगे बढ़े परमेश्वर धन्यवाद करते Lord, I हैं pray for every promotion, Lord, that Lord, we command in the name of Jesus, every darts of the evil one would go from it. और हर एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हो परमेश्वर वो रुके ना रहे Yes, Lord, promotion comes from you, Lord. और And बढ़ोतरी तेरी ओर से आती है And परमेश्वर Lord, you are the one who would raise the horn, Lord. और परमेश्वर तू ही है जो हमें उठाता है Hallelujah, Lord. We thank you धन्यवाद for your करते church, हैं Lord. तेरी कलीसिया के Thank लिए you for every offering, Lord. Every offering, Lord. Every tithe, Lord, that comes. That would be blessed, and you और would bless them with a परमेश्वर double portion, pressed हर down, एक shaken दान और together. दशवांश के लिए धन्यवाद करते तू जिन्होंने भी बोया है तू उन्हें आशीष दे और दुगना दे Lord, we pray for, Lord, the screen, that number that is going, they would sow into it, and your kingdom would be और extended, परमेश्वर Lord. हम प्रार्थना करते जो नंबर जाएगा जो बैंक अकाउंट डिटेल्स जाएंगे परमेश्वर तू मदद कर कि वो उन पर दे पाए Thank you for your word, Lord. धन्यवाद तेरे वचन के Lord, लिए। you said, help us to seek your righteousness, and all these things shall be added unto हमें you. मदद करके हम तेरे धार्मिकता की खोज कर पर ये सारी बातें हमें Help मिल us to जाएंगी। always be like Christ ambassadors, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम जो हमेशा तेरे प्रतिनिधि We की are the तरह बन work पाएं। of your handiwork, Lord. और हमें मदद करके हम तेरी हस्तकला की तरह Oh, रहें। we thank you that you said. Thank you for every family, every individual, हर Lord. एक परिवार हर एक परमेश्वर व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते Cover हैं them with your precious blood of Jesus. और परमेश्वर तेरे कीमती लहू से उन्हें बचा के रख। Prevent them from darts of the evil one. और परमेश्वर उन्हें दुष्ट के हमलों से बचा Set your guardian angel of protection over them. और अपने स्वर्गदूत से उनको बचाए रख। Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भर दे In Jesus' name we यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते with the love हैं of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy और पवित्र Spirit आत्मा की be संगति with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे अब और हमेशा Amen, के लिए। amen, Amen और amen. amen। All glory to God.